Hello, friends. Good morning, good afternoon, good evening to everyone. We will start with the first sentence. Hold your horses, boy. Hindi meaning रुको धैर्य रखो. Basically, it is a phrase which means wait a moment, to be patient, wait, and also used to tell someone to stop and consider carefully their decision or opinion about something. Let's take one example. Hold your horses, sir. Can't you see that we haven't finished here? The meaning, श्रीमान क्या आप देख नहीं सकते कि अभी तक हमने अपना काम पूरा नहीं किया है? Means धैर्य रखो. Move to the next sentence. Let's step out of the world of illusion for a moment. हिंदी मीनिंग, भ्रम की दुनिया से बाहर निकलो कुछ देर के लिए. Illusion means भ्रम. For a moment means कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए. Move to the next sentence. You treat customers with no respect, no dignity. हिंदी मीनिंग, तुम ग्राहकों को कोई इज्जत और ना ही कोई सम्मान देते हो. Dignity here means प्रतिष्ठा, मान सम्मान. Now move to the next sentence. Tried to make a man out of you and you have blown them both. हिंदी मीनिंग, मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की और तुमने दोनों चीज़ें गंवा दी. टू मेक मैन आउट ऑफ यू मीन्स अच्छा इंसान बनाना. यू हैव ब्लोन देम बोथ मीन्स कि आपने दोनों चीज़ें गंवा दी. दोनों चीज़ों से मतलब यहाँ पर अच्छा इंसान बनने से और दूसरा कस्टमर को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करने से. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एंड आई थिंक यू ओ लेफ्टिनेंट पीटरसन हियर. हिंदी मीनिंग, और मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम लेफ्टिनेंट पीटरसन के कर्जदार हो. ओ मीन्स कर्जदार होना, ऋणी होना, which means obligation to pay or repay something, especially money. Let's take one example. You owe my money means आप मेरे पैसों के कर्जदार हैं. In short, आपको पैसे देने हैं. Move to the next sentence. Every champion was once a beginner. हिंदी मीनिंग, हर एक विजेता प्रारंभ में नौसिखिया होता है. Beginner, you know, someone novice or start from the beginning. We call in Hindi Nausikhiya. So in that sense, sentence has been used that every champion was once a beginner. Move to the next sentence. Ron, do you remember when we met? Hindi meaning, Ron, तुम्हें अपने बारे में कुछ याद है जब हम मिले थे? Remember means याद होना. Move to the next sentence. What is that got to do with anything? हिंदी meaning, इसका दूसरी चीज़ों से क्या लेना देना? You must have heard the sentences like words that got to do with anything or words that got to do, which means generally इसका दूसरी चीज़ों से क्या लेना देना या इसका इन चीज़ों से क्या लेना देना. Now move to the next sentence. I mean, I would never hire anyone like you. हिंदी मीनिंग, मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे जैसी लड़की को नौकरी पर नहीं रखता. हायर करना मीन्स नौकरी पर रखना. Move to the next sentence. You don't belong here. हिंदी मीनिंग, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है. Move to the next sentence. You don't know how to put on these clothes. हिंदी मीनिंग, तुम्हें नहीं पता कपड़े कैसे पहनना है. This man is saying to his new employee that she don't know how to wear a clothes because he expect from her to wear short dresses and open her hair. This man want to take advantage of his seniority. That's why whenever he get opportunity, he look her down. Move to the next sentence. You are not presentable. हिंदी मीनिंग, तुम कपड़ों में आकर्षक और सभ्य नहीं हो. Presentable means well dressed, clean or decent enough to be seen in public. Now move to the next sentence. If I were you, I would have very good look. हिंदी मीनिंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दिखने में बहुत ही अच्छा लगता. Here it is conditional sentence. They describe the result of something that might happen in present or future. Move to the next sentence. I just hope that you together will get along. हिंदी मीनिंग, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी साथ में अच्छी बनेगी. Get along means साथ में अच्छी बनना. Previously I have used this sentence get along. I have already explained the meaning of it. Let's take one more example. Why you do not get along with anyone. हिंदी मीनिंग, तुम्हारी किसी के साथ में क्यों नहीं बनती. मीन्स किसी के साथ में फ्रेंडली टर्म्स पर क्यों नहीं रहते. दिस वॉज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रेज. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. प्लीज कैन यू डू मी अ फेवर. हिंदी मीनिंग,
कृपा करके, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो? फेवर मीन्स एहसान करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। वाई डू यू पुट अप विद इट? हिंदी मीनिंग लेकिन तुम ये सब बर्दाश्त क्यों करती हो? पुट अप मीन्स बर्दाश्त करना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। दैट्स एन अंडर स्टेटमेंट। हिंदी मीनिंग यह पर्दे में रहने वाली बात है, मीन्स समथिंग सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल। कुछ ऐसी बात जिस पर चुप्पी साधी जाए या खामोश रहा जाए। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। हाउ मैनी टाइम्स हैव आई टोल्ड माई सेल्फ सेम थिंग? हिंदी मीनिंग कितनी बार मैंने खुद से एक ही बात की। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई थिंक यू कांट लेट अदर पीपल वायलेट योर डिग्निटी नो मैटर वट। हिंदी मीनिंग मुझे लगता है तुम्हें अपनी मान प्रतिष्ठा के साथ कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। नो मैटर वट मीन्स चाहे कुछ भी हो जाए। डिग्निटी मीन्स मान प्रतिष्ठा। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। यू शोड मी हु यू आर। हिंदी मीनिंग तुमने दिखा दिया कि तुम कौन हो। मूव टू द नेक्स्ट। यू कैन मैनिपुलेट अदर्स इनटू डूइंग वट एवर यू वांट। हिंदी मीनिंग तुम चालाकी से दूसरों से ज़रूरत के हिसाब से काम निकलवाना जानती हो। मैनिपुलेट मीन्स चालाकी से दूसरों से काम निकलवाना। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई जस्ट ओवरहर्ड यू वर रिहर्सिंग फॉर प्रेजेंटेशन। हिंदी मीनिंग मुझे सुनाई दिया कि तुम प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही थी। ओवरहर्ड मीन्स चुपके से सुनना या कोई बात आपको खुद से सुनाई देना। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई एम गोइंग टू पुट इट ऑफ अंटिल नेक्स्ट ईयर। हिंदी मीनिंग मैं इसे अगले साल तक के लिए टालने वाला हूँ। पुट इट ऑफ मीन्स कि टालना, किसी काम को आगे तक के लिए डिले कर देना। दैट व्हाट इट्स मीन। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। मिस ब्राउन एंड ऑफ टॉक गेट्स बैक टू योर वर्क प्लेस। हिंदी मीनिंग मिस ब्राउन बात खत्म हुई, अपने काम पर लग जाओ। गेट बैक टू योर वर्क प्लेस मीन्स अपने काम पर लग जाओ। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। This was the query from the side of one of my viewer, Mr. Vijay Prakash Tiwari. I hope you will get here proper solution. What you were asking was not everyone is used. Not everyone because it's here a spoken English. Spoken English and written English has a big difference. But I would like to answer you. Not everyone means कोई नहीं। हिंदी मीनिंग इसका होगा कोई भी बॉस से पोजीशन पाने के लिए प्रलोभन नहीं देगा। तो नहीं नॉट के सेंस में यहाँ पर एंड में नहीं यूज़ हुआ है। आपका कहना था कि यहाँ पर वुड नॉट एवरीवन क्यों नहीं यूज़ हुआ है। वट यू हैव सेड वॉज ऑल्सो राइट बिकॉज देयर आर मैनी वेज टू राइट अ सेम सेंटेंस इन अ डिफरेंट फॉर्म। सो इफ़ आई टॉक अबाउट हिंदी ट्रांसलेशन, we cannot translate word to word. Translation always should be as per sentence and expression what person want to express. I hope I have explained elaborately and you got resolved your query. Feel free to ask more queries like this. If you like my video, hit like button and do subscribe and share with your friend that you do not miss my upcoming video. Thanks for watching.